Shall we move on to the practice now? Fine. Ma'am, what is the correct pronunciation of schedule? Look, now English is a global language, so we accept many sort of pronunciation. We do not say this is right or wrong, but it's like it is the language of everyone now. Okay, so we accept both. We don't say right or wrong, but two standards we accept, British and American. I go by British. British is schedule and American is schedule. Schedule. But schedule nobody says. Nobody says. But I say. Either schedule Uh-huh. which is British or schedule which is American. I say schedule, but I follow British. Thank you, sir. Okay, we'll start from that row today. Select any verb and make positive, negative, interrogative and query in present tense. Yes. Query is WH question. Why, what, when, how, where. He listened romantic song. So what it should be? He listens to the romantic songs. Yes. Uh-huh. But how will I convert this positive affirmative? So you make one sentence, will help you out. Query it's interrogative. You make sentence first. Okay. Romantic songs. What should be the sentence? He listened. He listened. Had की ज़रूरत नहीं है पहले चीज़. And listened होगा. ed add कीजिए end में. Sir, yeah, that much is enough. When do I drink coffee? Are all the 4 sentences fine? हाँ, फिर check कर दीजिए. Yeah. Ma'am. He will listen to romantic songs. Fine. Beta, you read the sentence aloud. He did not listen to the romantic. You think that is right? He does not. He does not. He does not. And I will drink the coffee. You are doing it this way, ma'am. No. Yeah. Yeah, ma'am, enough. Other way. I did not, ma'am. Past. I have a question here. In the आप में चाहिए. in the first column, no, leave it. I know this actually. In the first column, when he made, he said, I drink coffee, did not use the, and we agreed that it was fine. Now you have written, I drank the coffee, and we will accept this also as fine. Okay. But I want to know the difference. He is specifying that in past I have drank the coffee. तो पास में अगर द नहीं लगाती तो क्या उसको गलत बोलते हैं? नहीं ये भी सही है सर, ये भी सही है. द कॉफी कोई कॉफी है. इट इज सम कॉफी. तो पास्ट में आपने द लगाया. नहीं ऐसा नहीं है, पास्ट प्रेजेंट सोच के नहीं लगा. पास्ट में बिल्कुल सही बोल रही है.
फर्स्ट वाले जब प्रोनाउंस किया तो आपने द लगाया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने उससे एक्सेप्ट किया, ठीक है? नहीं, इसमें इसलिए सही है कि उसने कोई कॉफी पी। नहीं, वो प्रेजेंट था, वो रेगुलर के बारे में बोल रहा था। आपने जब पास्ट में बनाया तो आपने द लगाया, हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया, हमने मतलब निकाला। आप अगर द नहीं लगाती तो भी सही था। तब भी हम ऑब्जेक्ट नहीं करते, हम मतलब लगाते। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें मैंने जो मतलब निकाला और उस हरफ में जो मतलब निकालते हैं उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि सर ये कोई भी कॉफी है, ये द कॉफी मतलब कोई एक कॉफी है जो हम पी रहे एक खास कॉफी जो दिया गया जो हम कॉफी पी रहे में हैं, हाँ, उसको मैंने पिया। पिया, हाँ, और अगर वहां पर आप द नहीं लगाती हाँ, तो आप हम बोलते कि कॉफी नहीं पिया, साफ साफ बोल रही है कि कोई दिया हुआ कॉफी नहीं पिया। पिया हुआ कॉफी नहीं। एक क्वेश्चन विल आई नॉट ड्रिंक कॉफी, उसमें नॉट ऐड क्यों किया आपने? दैट्स सेंटेंस गलत नहीं है, हाँ, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन अगर नॉट नहीं लगाती तो उसका क्या मतलब? क्या मैं कॉफी पीऊंगा? ठीक, अगर आपने नॉट लगाया है तो क्या मतलब निकल रहा है? मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। तो क्या मैं कॉफी नहीं पीऊंगा? इसका आइडिया ये है कि पीने का मन है, ठीक है? और क्या मैं कॉफी पीऊंगा? इसका मतलब है कि आप श्योर नहीं Sure है, नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए, है ना? ठीक है, दोनों क्वेश्चन थे। और ऑल द सेंटेंसेस फाइन? Fine? Ma'am, what is the sentence? Movie. Spelling? Why does he see a movie? ओके, उसका मतलब क्या निकलता है? क्या वो मूवी देखता है? फाइन, उसके ऊपर वाला सेंटेंस है, उसका मतलब क्या निकलता है? क्या वो मूवी देखता है? तो दोनों एक ही हो गए ना? देयर इज नो डिफरेंस। अब क्या मतलब निकला? क्यों वो मूवी देखता है? फाइन सर, सर आप सारे सेंटेंसेस एक बार जोर से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। Birds do not fly in the sky. ओके, Birds did not flew in the sky. क्या हुआ अभी? दोनों सूटकेस लेके जा रहे हैं, दैट्स द सेंस। Birds did not fly in the sky. हाँ, sentences are okay? Birds be capital, नहीं कैपिटल नहीं करना है जो आपने सेकंड और थर्ड सेंटेंस में बनाया है। When it is the name of a person or if a word comes in the beginning of a sentence, only then we use capital letter. In Indian languages, we don't have the small letter and capital letter, business. English, in English, it is very, very important. वही चीज कि कितना लंबा है आपका, मतलब जो कैप्टन है के बाद से कितना छोटा है, बेचारे की लग रहा है। Fine. अलग अलग एवरीडे एक साथ हो सकता है, Battery. लेकिन वो कहीं और होगा। वो स्पेसिफिक नहीं हो, यहाँ पे मॉर्निंग लगा के नहीं, वो भी स्पेसिफिक होगा, लेकिन वो एवरीडे एक एडजेक्टिव होगा। दिस इज माय एवरीडे वर्क, दिस इज माय एवरीडे रूटीन। ओके, वहाँ पर रूटीन का या वर्क का क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव होगा एवरीडे। यहाँ पर एवरी डे, हर दिन, वो एडवर्ब है।
यहाँ पर एडवर्ड की तरह यूज करना होता है तो शॉर्ट में रहेगा। आपने एडवर्ड की तरह ही तो आपने यूज किया है। वो आप करता है कब? हर रोज। एवरी डे। एडवर्ड की तरह तो यूज है। आई वॉक स्लोली, अंदर लगाया है, एडवर्ड तो है ही, ठीक है। इनिशियल में नहीं तो एडजेक्टिव नहीं, उसी बात जो एडवर्ड ही होगा। कहाँ लगा रहे हैं उससे एडजेक्टिव एडवर्ड का कोई मतलब नहीं है। वो किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो उधर जो है ना वाले कॉलम के सारे में को आप 10 उठा के पढ़ा छाट दीजिए। एंड देन पूरा नहीं करना, जस्ट मेक ए दीवार बना दी। इसको 2 वर्ड लगाने हैं। डे को हटा के थोड़ा जगह छोड़ के डे बाद में लिख दीजिए। सर आप इंट्रोगेटिव बना दीजिए। सर रीड द सेंटेंस अलाउड। Okay, and still you can do 2 more corrections in the sentence. Capital D. Yeah. Come on. Yeah, make the negative. Fine, but you can write break in a better way. Yeah, fine. The R that you write is capital R, right? Small r there. जैसे क्वेरी में लिखा है ना आर, प्रेजेंट में लिखा है आर, हाँ वो आर जैसा नहीं दिख रहा है सर। ओके, बाकी चीज़ों सेंटेंस आप मुझे वही बता दीजिए। He will not walk in the morning every day. Will he walk? Yes. Will he walk in the morning every day? Or why will walk? नहीं. Why he will walk? Why will he walk in the morning every day? Yes. Okay, so you see now most of these sentences, if you are asked and if you take good care, you can make correct sentences. You make mistakes because you are not careful. Okay, you are in tension, you are in the board, or even while writing on your paper, you are in a hurry, or you are simply not very particular. Okay, but if you know that if you give that sentence correctly, then you will get a great job or a piece of diamond, then you will take so much care that you will do it right. But then it is important that whenever you speak, whenever you write, you should write these sentences correctly, and you should get that much practice that the moment you start writing, the correct sentence comes. The correct sentence comes naturally. आपका नाम क्या है? कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपका नाम किसी ने पूछा अचानक और आपने गलती महेंद्रनाथ चौबे? नहीं हुआ है ना? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपका नाम जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, एकदम डीप है। आप बुरी तरह से सो रहे हैं तब भी जो है कोई धक्का मार के उठा के बोले कौन हो तुम,
तो आप अपना सही नाम ही बताएंगे, ठीक है। कितने पैर है तुम्हारे? 2, कभी 3 नहीं बोलते हैं, हैं। अचानक कोई पूछे बताओ कितने पैर हैं तुम्हारे, कभी 3 नहीं बोलते हैं, हमेशा 2 ही बोलते हैं, क्योंकि 2 ही पैर हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस को आपको उस हालत में ले जाना है। इसलिए यहाँ पर क्लास में आपको एक बार बुलाया गया और 4 सेंटेंस बनाने को बताया गया और आपने 4 सेंटेंस बनाया सक्सेसफुली, आपने, हम लोगों ने कहा वाह वाह वाह, उतना काफ़ी नहीं है। इतना आपको प्रैक्टिस करना है, जितने सारे वर्ड्स हमने दिए हैं उस सारे वर्ड से जो है ना, इस टाइप का 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 करके बहुत सारा सेंटेंस बना के और फिर चेक करके कि सारे नियम के साथ हर चीज़ फिट कर रहा है। जैसे कि छोटे बच्चे को जब एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है तो उसको कहता है कि ये 10 एडिशन करके लाओ, और उसके बाद टीचर जो है बैठ के 10 चेक करती है कि अच्छा ये भी ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है। एक ठीक हो जाता है तो संतुष्ट नहीं होते हैं। वैसे खुद कीजिए, बहुत सारा बनाइए और हर एक को चेक कीजिए कि नियम के मुताबिक सब ठीक ठाक बैठ रहा है, हर एक बंदा नियम के मुताबिक है, तो हाँ हुआ। तो इस टाइप का बेहिसाब इतना बनाइए लिख के बोल कर, जिससे कि एकदम जो है ना वो पैटर्न में आ जाए, वो इस हद तक पहुंच जाए कि तुम्हारा नाम क्या है? देश। पिताजी का नाम क्या है? देश। कहाँ के रहने वाले हो? देश। उम्र कितनी है? वो कभी कभी गड़बड़ हो सकता है क्योंकि साल बदलते रहता है, ठीक है, लेकिन उस हद तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर बर्थडे विश करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो भी गड़बड़ नहीं होगा, हर बार हिसाब होते रहेगा। तो इस हद तक प्रैक्टिस करना है। अच्छा, किताब उठाइए। कौन सी किताब उठाएंगे? नहीं, ओके। मैं जब कहता हूं कि किताब उठाइए तो मैं उन किताबों के बारे में कहता हूं जिसको उठाएंगे आप कुछ सीखने के लिए नहीं, मजे के लिए, ठीक है। मजे के लिए किताब उठाइए। यानी कौन सी किताब? स्टोरीज, यस, स्टोरीज। पिक अप स्टोरी बुक्स, एंड व्हेन यू रीड स्टोरी बुक्स देन be a little conscious about the sentence structure and see that this sentence fits in that structure which was told, which was taught in this. Okay, हाँ ये भी फिट करता है। अगला सेंटेंस पढ़िए, हाँ सेंटेंस फिट कर रहा है, पैटर्न में फिट कर रहा है। So be conscious that all the sentences are correctly fitting into the patterns, either this pattern or that pattern or that pattern and so on. That means in a way you try to check whether the author has written correctly. Okay? और जब आप चेक कर लेंगे कि ऑथर ने, लेखक ने सही सही लिखा है, तभी आप समझिए कि आपने उसके विषय वस्तु को ठीक से ले लिया है, ठीक है। एंड that will become a routine affair, that you read a sentence, as you interpret, as you make out the meaning of it, at the same time you check its correctness, and once in a while you might get a sentence which you think is wrong. छपाई की किताब में कभी कभी आ जाती है, ठीक है। देन यू मेक नोट दैट ये सेंटेंस मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, ये किसी जानकार बंदे से पूछना पड़ेगा, ओके। एंड इन एनी केस रीड ए लॉट ऑफ बुक्स सो दैट दीज पैटर्न्स कम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ओके। एंड once in a while try to talk to your friends in English. So when you do all these things, then the sentence patterns will become natural to you, okay. Then the way you walk, the way you get up from your seat, the way you sit somewhere, the way suddenly asked your name, you tell your correct name, okay, like that it will become natural, okay. So what is the remaining part of agenda today? We should do some little practice of the words which we have got in today's class. From the top line, take a word and quickly tell a sentence. I want quickly because I want to have the sentence coming from the pattern, not of deep thinking and all sorts of checks and so on. Whatever comes to your mind first. He sees a tree. He sees a tree. He sees 3 trees. 3 वर्ड्स आ गए, हाँ ठीक है। अगले वाले को दे दीजिए। दूसरे लाइन से एक वर्ड उठा के बहुत जल्दी से एक सेंटेंस बताइए। सारे वर्ड्स खराब है तो मतलब पूछिए ना, पूछिए कि वर्ड का मतलब क्या है, ये क्या चीज है? बीट, बीट मतलब मानना नहीं, मानना नहीं, That is B-E-A-T. दैट इज BEAT। BEET बीट क्या होता है? बीट रूट। हिंदी में क्या बोलते हैं? करेक्ट, चुकंदर। और दक्षिण अमेरिका में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। हमारे यहाँ
वो सब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बहुत अच्छा होता है, गन्ने से चीनी अच्छी बनती है, ठीक है। तो बीट इज दैट, बीट रूट। I want to eat beet. आई वॉन्ट टू ईट Beet. कितने? 3 beets. तो ऐसे बोलिए ना, I want to eat 3 beets. आई वॉन्ट टू ईट बीट्स और आई वॉन्ट टू ईट ए बीट, Eat a beet. ठीक है। आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट लाइन। I feel good. I feel good in feeding him beets. ठीक? I feel good in feeding him beets. पीछे दीजिए। I meet my teacher daily. I meet my teacher daily. Meet. Meet. I meet my teacher daily. Yeah. भाग जाएगा वो। पीछे दे दीजिए। The queen is so beautiful. So beautiful मत बोलिए। The queen is beautiful. The queen is beautiful और the queen is very beautiful। Very beautiful. ये so beautiful जो है ना, ये टिपिकल इंडियन मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है। द क्वीन इज वेरी ब्यूटीफुल, या बोलिए द क्वीन सीम्स टू सीक माई कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट। This is a sheet. हाँ, This is a sheet. दिस इज ए शीट ऑफ पेपर, हाँ, Yes, sir. ओके नेक्स्ट। इस लाइन से बनाइए, इस लाइन से कोई एक वर्ड लेके बनाइए। Car is going from very speed. कार इज गोइंग, Very speed. High speed. बीच में कुछ होगा, Car is going एट ए हाई स्पीड, द कार इज गोइंग एट at ए a हाई high स्पीड। speed. आगे, The boy is weak. The boy weaks. नो, Weak. ये क्या चीज है, वीक Weak. Okay. मतलब हफ्ता, 7 दिन का, लड़का हफ्ता नहीं हो सकता है। आप जिस वीक की बात कर रहे थे वो है WEAK, वीक, कमजोर। I want to sweets. आई वॉन्ट, To eat sweet. करेक्ट, आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स, ठीक है। कोई बीट खाना चाहता है, कोई स्वीट खाना चाहता है, उधर से बढ़ाइए। I am going to cheer the bear. आई वॉन्ट टू, I am want to cheer the bear. Beer. नहीं, सेंटेंस आपका क्या है? I want to cheer the bear. आई वॉन्ट टू चीयर द बियर Or with beer. विद बियर, आई वॉन्ट टू Yes, yes. चीयर I want to हिम cheer विथ बियर, जिसको आप पिलाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू चीयर हिम विथ सम with बियर, beer. Yes. और चीयर हिम अप, है ना। आई वॉन्ट टू चीयर हिम अप विथ सम बियर। I want to eat cheese with burger. I want to eat cheeseburger. आई वॉन्ट टू ईट चीज बर्गर, करेक्ट। I meet sheep and deers. डियर्स नहीं, Deers. D. ठीक है। अगले लाइन, लास्ट लाइन में, Squeeze those potatoes from me. पोटैटोज, Sorry, tomatoes. लेमन, Tomatoes, sorry. लेमन वुड बी अ गुड आइडिया। Lemon. स्क्वीज दीज लेमन्स, Boiled potatoes can also squeeze. स्मैश हो जाता है, Smash it there. स्मैश या मैश, मैश, मैश हो जाता है, ओके। अच्छा, ये वर्ड्स आप एक बार पढ़ के सुनाइए तो हम लोगों को। Do, to, who, com, हाँ, इसीलिए मैंने बोला था। cum, दिस इज कुम, cum, tom, wolf, lose, और इस move, लूज को आप ठीक से देख लीजिए, स्पेलिंग क्या है, LOAC. मतलब हाँ मतलब खोना, खोना खोना। या और यहाँ पर एक और लूज कहीं पर आएगा, LOAC. लास्ट फोर्थ, हाँ या लूज। हाँ इसमें दो ढीला ओ है, ढीला इसमें, इसका मतलब है ढीला। या इंडियंस बुरी तरह से लिखते हैं ये वाला स्पेलिंग इसकी जगह पे, आप ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ईवीपी के क्लास में आ चुके हैं एक बार। यहाँ से बाहर जाके आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। मूव, प्रूव, ठीक है, इस लाइन में से कोई एक वर्ड लेकर आप एक सेंटेंस सुनाइए लोगों को। जल्दी।
I prove this question. क्वेश्चन को प्रूव नहीं किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है. Equation. हाँ, I prove this equation. Theorem. Yeah. Theorem. Yeah. I prove this theorem. Yeah, I proved this theorem. Okay. Or I will prove this theorem. Whatever. ठीक है. आगे बढ़ाइए. Which movie did you watch yesterday? Perfect. इधर आ जाइए. Next. Boost yourself for the exams. What? Boost yourself for the exams. Boost yourself. Yourselves. हाँ, for the ज़्यादा लोगों exams. को बता रहे हैं. हाँ. Boost yourselves for the exams. ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी सलाह है. Next. He is full. He looks cool. What? He is full. But he looks cool. But he looks cool. हाँ, बस ऐसा होता है, ऐसा होता है. Next. He shoot. Okay. He shoots on target. He shoots on Target. the target. On the. Fine. Blood donation is good cause. Blood donation is a good cause. Yes. ठीक है. What is the meaning of news? News मतलब क्या होता है? फांसी का फंदा? न्यूज. ठीक है, जिसमें एक तरफ पकड़ के रखिए, दूसरी तरफ से खींच दीजिए तो श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा. ठीक है, फंस जाता है. ठीक है, बताइए. कोई जरूरी नहीं है कि न्यूज से ही बनाइए, किसी भी से बनाइए. Don't tie the rope loose or clothes will fall from it. Don't tie the Rope loose rope loose or clothes will fall. or clothes will fall from it. Fell from it. Hmm? Fell from it. Clothes will fell from it. No. Fall. Fell तो past हो Fall गया. ठीक है, सेंटेंस ठीक है. यहाँ से वर्ड ले लीजिए. I had a good cook. I had a good cook. ये तो अच्छी बात है. ओके, सो अभी हम लोग आज का क्लास वर्क करेंगे और उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगले क्लास के लिए आप एक तैयारी करके आएंगे. ठीक है, ये इस वीक के लिए जो है होमवर्क के तौर पे रहा. अभी तक 8 सेशंस में जितनी चीज़ें कवर की जा चुकी है उसमें से कोई एक टॉपिक आप अगले सैटरडे को पढ़ाने के लिए तैयारी करके आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे you come prepared with one topic to teach. Okay, so plan for 7-8 minutes. Okay, at most 7-8 minutes, not more than that. So that topic you will teach, and for that we will not give you our notes. These things we will not give. You are a teacher, so you will make your own notes, you will make your own plan, your own notes, and take a topic from those topics which have been covered in last 8 sessions. Whatever has been covered, from that pick up a topic, not new topic, because new topic will come later and we will have such sessions even later. So whatever topics have been covered till now, from that one small topic, one little piece you prepare and you say that today I am going to teach you this topic, and then teach it, tell the idea, tell the rules, give examples, show exceptions, and whatever you want to do. Okay, so plan for 7 to 8 minutes. Okay, so and in the beginning of the class we will circulate a sheet, in that you write your name and that topic which you want to teach. Fine. Okay.